Hello everyone. CA final paper number 5, strategic cost management and performance evaluation. This is the very first lecture, we can say the introduction lecture of this compact batch. This compact batch will be based on new study material released by the ICI in the current month, that is December 2020. Yes, you heard it right. All the content, all the question, all the theories will be covered as per newly study material released by the ICI in the month of December. We are starting the recording of this compact batch on today, that is 18th of December 2020. So since this is the introduction lecture first, so I would like to divide this introduction lecture into 4 parts. Where we will discuss about the first 3 content will be related to the introduction part, faculty intro, subject intro, and the third one is batch intro, batch detail, and we will try to cover this in the initial 30 to 35 minutes. Thereafter we will shift to the content delivery, that is formally start the subject with one of the chapters out of the 12 chapters available in our syllabus. Okay beta? So let's start the introduction part. First of all, the faculty introduction. I am Sharad Agrawal from Indore, Madhya Pradesh, teaching this subject. Earlier cost accounting, then advanced management accounting, and in the new syllabus strategic cost management and performance evaluation since last 15 years. So all the experience of mine, especially teaching CA final student since last 15 years, will be incorporated in this batch. As a teacher, as an experienced teacher, I am very well aware that what are the problematic area for my students. Definitely in this compact batch, we will focus more on that tough concept so that after the completion of this batch, each and every student will be very comfortable in those 3 hours. Yes, my target will always be those 3 hours whenever I will record the lecture for the compact batch. And educational qualification wise, a graduate in commerce in which I was a gold medalist. After that joined LLB in which I was a university topper, and then joined chartered accountancy course in which I was a all India rank holder at CA final level. So this is all about my introduction. Coming to the important introduction of subject introduction and the batch details. Batch detail will cover majority of your queries. What are the questions that will be covered in this batch? Whether case studies will be covered, whether theory will be covered in this batch, whether International Institute questions will be covered, what will be the duration, each and every query I will discuss in detail in part number 3 batch detail. Before that, we will move on to the subject introduction. Commonly known as cost accounting, this subject has been divided into 2 parts. The first part is strategic cost management and the second part is performance evaluation. In the common parlance, we can say the paper number 5 is of cost accounting, but really it's not so. The nomenclature of the subject itself signifies the importance, the depth of the subject. Strategic cost management. First of all, I will discuss this part 1, strategic cost management, in a very short manner. होता क्या है बेटा, पिछले 5-10 सालों से कंपटीशन बढ़ा है. मानते हैं आप? ये दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ रहा है और ये आज नहीं बढ़ा है कंपटीशन. अगर आप लास्ट डेकेड की बात करें तो लास्ट डेकेड से कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है. आज की तारीख में कंपटीशन इंटेंसिफाइड हो चुका है. तो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ रहा है. जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, तो कस्टमर के पास, बायर के पास ज्यादा चॉइसेस हो जाती है. तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो सेलर होता है, अब उसको प्राइस कम करना ही पड़ता है, क्योंकि सेल प्राइस डिसाइड करना आज की तारीख में मैन्युफैक्चरर के हाथ में नहीं है ड्यू टू द इंटेंसिफाइड कंपटीशन. तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी, अगर उस बंदे को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसे उसी प्राइस पर, मोर और लेस उसी प्राइस पर बेचना पड़ेगा. एग्रीड? कंपटीशन बढ़ने से सेल प्राइस पर प्रेशर आया
No more sale price will be decided by the manufacturer or the seller. It will be decided by the market force. तो पहली प्रॉब्लम एक मैन्युफैक्चरर को, एक सर्विस प्रोवाइडर को, एक रीसेलर को कि आज की तारीख में सेल प्राइस उसके हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथों में है। जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस के आसपास उसको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ये पहली प्रॉब्लम। सेकेंड इश्यू, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, बायर की एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द सर्विस डे बाय डे इंक्रीज हुई है। आप अपने आप का एग्जांपल ले लीजिए बेटा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो आपने आज से 5 साल पहले खरीदा होगा, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इवन एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले सकते हैं अपन, पेन ड्राइव ले लीजिए आप। उस समय जो उसकी स्पीड हुआ करती थी पेन ड्राइव की कॉपी करने की, और आज की जो स्पीड आप एक्सपेक्ट करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि कंज्यूमर को प्राइस भी कम चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उसे क्वालिटी भी और इंप्रूव चाहिए डे बाय डे। अगर एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ रीसेलर आप उसकी ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते हो तो कंज्यूमर के पास, बायर के पास ढेरों चॉइस है। वो मेरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। कॉम्पिटिटर बहुत खुशी खुशी उसको उसकी प्राइस पर, उसको उसकी क्वालिटी डिलीवर कर देगा, जबकि आप वो नहीं कर पाए तो आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो गया। तो जो दो प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताया, दिन पर दिन सेल प्राइस कम होते जा रही है ड्यू टू द इंटेंसिफाइड कंपटीशन। दिन पर दिन आपको क्वालिटी पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि नाउ डेज कंज्यूमर आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस। अब इन दोनों प्रॉब्लम को अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक मैन्युफैक्चरर के एंगल से। अगर सेल प्राइस कम हो रही है तो वो एक्सपेक्ट करता है क्वालिटी भी कम हो, या क्वालिटी कम से कम वो मेंटेन रहे, लेकिन नहीं, क्वालिटी पर आपको ज्यादा स्पेंड करना है, लेकिन जो आपको इनफ्लो होगा वो पहले के मुकाबले और भी कम होगा। इस पूरी प्रॉब्लम को डील करेगा आपका पहला पार्ट, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें टोटल 7 चैप्टर्स कवर्ड है। ये आपको बताएंगे कि कैसे आज की तारीख में आप इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे प्रॉफिटेबली। क्योंकि देखिए, मैंने जो भी प्रॉब्लम आपको गिनाया ये रियलिस्टिक है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में बहुत सारी कंपनियां हर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही है, इवन वो प्रॉफिटेबल भी है। तो जो नई टेक्निक इवॉल्व हुई है एक कॉस्टिंग वर्ल्ड में कि कैसे आप इन दोनों चीजों को मैनेज करें जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती है, इन्हीं से रिलेटेड ही आपके 7 चैप्टर से, द इनिशियल 7 चैप्टर रिलेट टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इट्स नॉट कॉस्ट कंट्रोल, इट्स नॉट कॉस्ट रिडक्शन, इट्स कॉस्ट को मैनेज करना ताकि हम वो प्राइस डिलीवर कर पाए जो मार्केट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, प्लस वही क्वालिटी हम दे पाए जो हमारा कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ताकि हम अपना बिजनेस प्रॉफिटेबली रन कर पाए। ठीक है बेटा। जो इसका सेकेंड पार्ट है, रिमेनिंग 5 चैप्टर्स रिलेट टू परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या होगा, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स है, जो भी आपके मैनेजर्स है, आपने उनको एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टारगेट दिया था। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब उन्होंने अपना टारगेट फुलफिल कर दिया तो अब आप उनके परफॉर्मेंस को सिर्फ कंप्यूट नहीं करोगे, कंपेयर नहीं करोगे, आपको इवेल्युएट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन नहीं है, परफॉर्मेंस एफर्टेनमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है। मतलब इवेल्युएशन नॉट ओनली इंक्लूड्स द कंप्यूटेशन पार्ट, बल्कि यहां पे उससे एक स्टेप और है। जैसे एक चैप्टर आपने इंटर लेवल पे पढ़ा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मान के चलिए उसका कोई एक वेरिएंस, सपोज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एडवर्स आता है। तो अभी तक क्या होता था इंटर लेवल पे, हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस का कंसेप्ट हमें पता है, जो न्यूमेरिकल डिटेल दी गई थी उसके आधार पे हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कंप्यूट कर लिया और हमने सामने वाले एग्जामिनर को बता दिया कि भैया इतना इतना प्राइस वेरिएंस आपका एडवर्स है। वो था परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन, कि जो आपको स्टैंडर्ड दिया गया था क्या आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, ये हम कंप्यूट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जबकि फाइनल में ना सिर्फ आपको कंप्यूटेशन करना है इन चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, बल्कि उस कंप्यूटेशन को फिर आपको इवेल्युएट करना है। जब भी हम इवेल्युएशन की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटेशन आता है प्लस इसमें एनालिसिस आता है, और एनालिसिस दोनों साइड का होता है बेटा। एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से भी आप यहां पे बताएंगे,
मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से भी बताएंगे, निगेटिव पॉइंट्स भी यहां पे आप एक्सप्लेन करेंगे उस परफॉर्मेंस के, इवन पॉजिटिव पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब एक जो अनबायस्ड पोजीशन होती है बंदे की, वो आपको यहां पे डिलीवर करना होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। तो फर्स्ट 7 चैप्टर्स रिलेटेड टू पार्ट नंबर 1 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, द लास्ट 5 चैप्टर्स बिलोंग्स टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसकी हेडिंग ही इसी को डिनोट करती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर आप नवंबर 2019 का भी पेपर देखेंगे, इट इज द किंग मेकर। इसके बाद जो नवंबर 20 का पेपर हुआ था उसमें भी एक किंग मेकर रहा है, और आने वाले अटेम्प्ट में भी आप मान के चलिए जो जनवरी 21 में अभी अटेम्प्ट ड्यू है, प्लस मई 21, नवंबर 21, ये आने वाले 3 अटेम्प्ट अभी पूरे 2021 के, उसमें भी चैप्टर नंबर 8 बहुत ज्यादा वेटेज रखेगा। तो डेफिनेटली जिसका वेटेज ज्यादा रखेगा इसे, उसको अपन अपनी बैच में भी डेफिनेटली ज्यादा वेटेज देंगे। आप देखेंगे पूरे 12 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा कंटेंट डिलीवरी, सबसे ज्यादा जो मेहनत मैं आपसे कराऊंगा वो चैप्टर नंबर 8 में ही है, जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का सबसे पहला चैप्टर है। तो अब एक लास्ट चैप्टर बचता है। जब आप अपना स्टडी मटेरियल देखेंगे तो टोटल आपके पूरे कंटेंट को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो 13 चैप्टर है एक्चुअली वो कोई अलग से कंसेप्ट उसमें नहीं है, जो आपने राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 12 पढ़ा है, उन्हीं को केस स्टडीज के फॉर्म में जब वो क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो एक सेपरेट चैप्टर आईसीआई ने बना दिया है, चैप्टर नंबर 13। लेकिन अपन क्या करेंगे इस बैच में, जैसे मान के चलिए चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कोई केस स्टडीज अगर आपको चैप्टर नंबर 13 में दिया है, तो अपन ने क्या किया है नोट्स में, चैप्टर नंबर 2 के साथ जो उससे रिलेटेड केस स्टडीज है उन्हें हमने चैप्टर नंबर 2 के साथ ही रखा है। तो अलग से कोई अपना केस स्टडी वाला चैप्टर नहीं रहेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे सुनिएगा बेटा, अलग से कोई केस स्टडी वाला चैप्टर नहीं रहेगा। जितनी भी केस स्टडी है 100% केस स्टडीज आईसीआई की, चाहे वो स्टडी मटेरियल में दिया हो, चाहे वो आरटीपी में हो, चाहे वो एमटीपी में हो, चाहे वो एडिशनल क्वेश्चन हो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन कवर होगा केस स्टडी का। लेकिन वो चैप्टर वाइज अपन ने उसको सेग्रीगेट कर दिया है। जो भी चैप्टर अपन लर्न करेंगे उसी चैप्टर के साथ उसकी केस स्टडीज को भी डील करेंगे। तो ये वो आपका पूरा एक सब्जेक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स है। अगर मार्क्स वाइज अगर अपन बात करें तो आप एक रफली मान सकते हो, इनिशियल 7 चैप्टर्स आपके 50 मार्क्स को बिलोंग करते हैं, लास्ट के 5 चैप्टर्स आपके अगेन 50 मार्क्स को बिलोंग करते हैं। रफ कैलकुलेशन है, 5 to 10 मार्क्स इधर उधर बहुत इजीली शिफ्ट हो चुके हैं पिछले अगर अपन अटेम्प्ट देखें तो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन मैं आज ही करना चाहूंगा बेटा। आईसीआई की वेबसाइट जब आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का एक स्किल असेसमेंट स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, और ये आज से नहीं दिया हुआ है, जब इन्होंने सिलेबस लॉन्च किया था 2017 में, तभी से ये स्किल असेसमेंट प्रिंसिपल इन्होंने लेट डाउन किया है। फाउंडेशन के लिए अलग है, इंटरमीडिएट के लिए अलग है। अपन तो सीधा अपने फाइनल कोर्स में, सीधा अपने पेपर नंबर 5 में अगर मैं आऊं तो आपको क्लियर कट दिखेगा पेपर नंबर 5 में कि यहां पे हमें आईसीआई 3 लेवल पर टेस्ट करेगा। ये मैं आपको वेरी फर्स्ट डे ही और इन द इनिशियल 30 मिनट्स लिए बता रहा हूं बेटा। एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको क्लियरली कम्युनिकेट करूं। ऐसा नहीं कि बेटा ये सब्जेक्ट बहुत ही ईजी है, आपसे चुटकियों में हो जाएगा, ये बैच आप कर लो बस लाइफ सेट है, ना, सब फालतू बात है। यह सब्जेक्ट बहुत टफ है, बहुत मुश्किल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अगर मैंने आपको इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पहले दिन फर्स्ट आवर से ही कम्युनिकेट कर दिया तो जो आपका माइंडसेट है ना वो धीरे धीरे डाइवर्ट होगा। तो एट द एंड ऑफ द बैच मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि जो आईसीआई की एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सीए फाइनल स्टूडेंट रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट पेपर नंबर 5 वो आप डिलीवर कर पाएंगे। तो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर आप देखिएगा, जो भी अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां से ही ये तीनों लेवल को अपने को धीरे धीरे टच करना है। तो जब आप लेवल 1 देखेंगे, अभी वो क्या है अभी उसको ना देखते हुए अपन पहले भी परसेंटेज देख ले। लेवल 1 में आप देखेंगे तो 10 to 15% कवरेज है। मतलब आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेवल 1 के क्वेश्चन आपसे 10 to 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। लेवल 2 45 to 55% कवर करेगा आउट ऑफ योर 100% मार्क्स, एंड जो लेवल 3 है वो 35 to 40% कवर करेगा। देखिए
सिंपली जो मेहनत ज्यादा है यहां पे वो डेफिनेटली लेवल 2 और लेवल 3 में है। अब अपन इन लेवल के मतलब क्या है जो आईसीआई ने कम्युनिकेट किया, ये अगर अपन देखें तो पहला है कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, जो हमारे सिर्फ 10 to 15% मार्क्स कवर करते हैं। सिंपल, एकदम सिंपल पार्लेंस में मैं बोलूं, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज का मतलब आपको एक बेसिक आइडिया है उस कंसेप्ट का। जैसे एक कंसेप्ट ले लेते हैं अपन, जस्ट इन टाइम एक कंसेप्ट है आपके सीए फाइनल में, तो जस्ट इन टाइम का आपको बेसिक नॉलेज है, उसकी टेक्निकल टर्म्स आपको पता है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उनकी जो ऑथराइज्ड डेफिनेशन है, अगर ये आपको पता है तो आईसीआई इसे बोलता है कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। आपको उस चीज का आइडिया है, और अगर हम कोई डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जेआईटी पर आपसे पूछेंगे तो आप उसको बहुत कंफर्टेबली आंसर कर पाओगे, तो इसको बोला जाएगा कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज। तो यहां पर ये सिर्फ 10 to 15% ही बिलोंग करता है। अब आते अपन लगभग 85 to 90% जो आपका कंटेंट है, जो आपके मार्क्स अलॉटेड है उस 3 आवर्स में, वो है एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट एंड इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस पार्ट। अब एनालिसिस और एप्लीकेशन और इवेल्युएशन और सिंथेसिस को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो ये पार्ट है ना सिर्फ आपको उस जस्ट इन टाइम का बेसिक नॉलेज, बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज में कवर्ड है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ के अगर जेआईटी में जस्ट इन टाइम में कोई कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन भी आप करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो भी आपने कैलकुलेशन किया है, अब उस कैलकुलेशन को जब आप लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हो, दैट बिलोंग्स टू योर लेवल नंबर 2 एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट। आई रिपीट, आपको नॉलेज हो गया जस्ट इन टाइम का, आपने लेवल 1 अचीव कर लिया। फिर लेवल 1 अचीव करने के बाद जब आपने उस नॉलेज को न्यूमेरिकली कन्वर्ट किया, न्यूमेरिकली कन्वर्ट करने के बाद जो जो आपने वर्किंग किया है उसको जब आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हो इन डिटेल, तो दैट विल कवर एनालिसिस एंड एप्लीकेशन पार्ट, विच विल कवर 45 to 55% ऑफ योर पेपर इन दोस 3 आवर्स। एंड द लास्ट पार्ट, आपको नॉलेज हो गया, आपने उसको कंप्यूट कर लिया, आपके पास ये एबिलिटी भी आ गई कि जो आपने करा है आप उसको इन डेप्थ एक्सप्लेन कर पाओ। एंड द लास्ट पार्ट इज, अब आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अपन अपना क्लाइंट मानेंगे, अपने क्लाइंट के हिसाब से अब यहां पे रिकमेंडेशन स्टार्ट होता है। और जब भी हम रिकमेंडेशन की बात करेंगे लेवल 1 नंबर 3 में, तो यहां पे हमें ना सिर्फ उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बोलना है बल्कि निगेटिव पॉइंट्स भी बोलना है। यहां पर लेवल नंबर 3 में आपका इमेजिनेशन स्किल बहुत काम आता है बेटा। लेवल नंबर 2 तक आपका नॉलेज काम आएगा, यहां पे जो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी ना, दैट विल बी प्ले अ मेजर रोल इन लेवल नंबर 3। तो अभी तक अपना ये डिस्कशन हुआ बेटा, जो आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। ये टोटल 2 पार्ट में आपका डिवाइडेड है सब्जेक्ट। साथ में बोलिए, पहला स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, सेकंड पार्ट किसी को याद है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। टोटल 7 चैप्टर है आपके पार्ट नंबर 1 में एंड टोटल 5 चैप्टर है आपके पार्ट नंबर 2 में। जो 13th चैप्टर है दैट इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर, उनको केस स्टडीज को अलग रख दिया। अपन ने अपने नोट्स में हर चैप्टर वाइज वाली केस स्टडी कवर किया, तो 100% केस स्टडी विल बी कवर। फिर अपन ने आया कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। इस सब्जेक्ट को ना सिर्फ हमें सिर्फ प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली करना है, न्यूमेरिकली हार्डली यू विल गेट 30 to 40% कवरेज आउट ऑफ 100 मार्क्स पेपर। यस, यू हर्ड इट राइट। न्यूमेरिकली अगर अपन बात करें बेटा, तो ये न्यूमेरिकल 100% न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ 30 to 40% यहां पे न्यूमेरिकल है। रिमेनिंग जो है वो आपका एनालिसिस इवैल्यूएशन पार्ट है। और जब भी मैं एनालिसिस और इवैल्यूएशन पार्ट की बात करता हूं तो इसमें थ्योरी में कमांड होना बहुत बहुत जरूरी है। तो पूरा जो भी अपने 140 आवर्स है इस बैच के, कॉम्पैक्ट बैच के, पूरा फोकस रहेगा, इक्वल वेटेज देंगे। थ्योरी का प्रपोर्शन ज्यादा है तो उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, केस स्टडीज ज्यादा है तो उस चैप्टर में केस स्टडीज को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। मतलब इस बैच में कहीं आपको अनजस्टिफाइड नहीं मिलेगा कि कोई चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दे दिया जबकि आईसीआई उसका उतना वेटेज देता ही नहीं है। पूरा ये बैच डिजाइन किया गया है कि आईसीआई जो एक्सपेक्टेशन रखता है हर एक बंच ऑफ चैप्टर में, जितनी एक्सपेक्टेशन है आईसीआई की मार्क्स के अकॉर्डिंगली, उतना ही कवरेज आपको अपनी बैच में भी मिलेगा। तो ये 3 लेवल बेटा आपको ध्यान रखने हैं, कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज, सेकंड लेवल फिर आपको एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इवैल्यूएशन एंड सिंथेसिस। फिर आईसीआई लगातार लास्ट
ईयर से इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। अभी अपन ने पढ़ा लेवल 3 है, अब उन 3 लेवल पर रिक्वायरमेंट पार्ट जब आप देखते हो क्वेश्चन का, तो हर रिक्वायरमेंट पार्ट में अलग अलग वर्ब यूज किए गए हैं। और स्पेशली आप देखिएगा पूरे आपके स्टडी मटेरियल में, इवन एग्जामिनेशन पेपर में भी उन जो वर्ब है उनको हाईलाइट किया गया है या उनको बोल्ड लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। कम्युनिकेशन ये है कि ये जो आपके पास पीडीएफ आपको नोट्स के थ्रू मैं प्रोवाइड करूंगा हार्ड कॉपी में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस सब